Now, since the noise is part of the system, we all know when we are talking about digital system, हमारे पास जो बिट होता है दैट इज ईदर जीरो और वन. जो भी हम मॉड्यूलेशन भी करते हैं तो जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ होता है एंड वन के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ होता है generally when we are talking about our normal digital binary communication system. So the binary communication system can be summarized with this diagram, meaning कि हमारे पास एक xt सिग्नल है एंड उसके साथ मेरे पास क्या है, कुछ नॉइज आई. नाउ दिस इज द रिसीवर, यानी जो रिसीवर है आपका वो एक xt सिग्नल रिसीव कर रहा है and it has some noise along with it that is represented by NT, right? And then we have something called as a threshold device. So threshold device का यहाँ पर क्या importance है? It will make a decision whether the signal that we have received is it corresponding to 0 or corresponding to 1. जितने भी हमारे levels हैं, अगर हम बेसिक बाइनरी स्कीम्स की बात करें तो हमारे पास दो ही लेवल होंगे, 0 एंड 1, राइट. अब ये जब नॉइज इसमें मिक्स्ड है देन स्टिल वी शुड बी एबल टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन वेदर द वैल्यू दैट वी गॉट हियर एट द इनपुट ऑफ द रिसीवर क्या वो 0 है या 1 है. ऑफ कोर्स देयर विल बी सम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर आल्सो, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कोई वहाँ पे बैठा तो नहीं है एनालाइज करने के लिए. तो ऐसा भी हो सकता है कि थ्रेशोल्ड डिवाइस आपका एरर create कर सकती है. Of course, it may happen if the level of noise is very high, then it may happen that दो यहाँ पर एक सिग्नल आया था which was corresponding to 0, but because of the noise level यहाँ पर decision 1 हो गया. So we have to actually look at these concepts कि noise कैसे affect करेगी आपके system को, और जब affect करती है तो हम कैसे अपना एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड डिटेक्टर बनाएंगे जिससे हमारे पास मैक्सिमम टाइम्स करेक्ट डिसीजन आए, करेक्ट आउटपुट आए. एंड वी विल आल्सो लुक एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बिकॉज वी हैव बीन स्टडीइंग प्रोबेबिलिटी. तो हम उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे कि एक्चुअली क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हो सकती है. एवरी सिस्टम इज गोइंग टू हैव सम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कि 100 टाइम्स में एटलीस्ट इतने टाइम्स आपका कुछ एरर आएगा. That is not avoidable because of the presence of noise, right? So we are going to look at this linear receiver जो हमारा receiver receive कर रहा है signal along with noise, और कैसे ये actually decide करेगा whether we are receiving a 0 or whether we are receiving the signal corresponding to 1. So we will check the receiver and we will also look at a concept that is optimum threshold detection. Best possible हम threshold detection कैसे कर सकते हैं so that we mostly get correct outputs. So अगर हम binary communication की बात कर रहे हैं then we have 0 and 1 digits which will originate from the source. So this everyone knows. So let us represent them by xt and minus xt, यानी 1 के लिए हमारे पास प्लस xt है और 0 जो कि हमारा पोलर फॉर्म हो जाएगा उसके लिए माइनस xt है. Now these bits will travel over a distortionless channel which is noisy. Distortion नहीं है वहाँ पर but noisy. So जो हमारे पास received signal आएगा we can represent it in this form, plus minus xt plus nd. So n is the noise component here. And of course from our previous lectures we have seen that we will be treating our channel as our noise as white Gaussian noise. या हमारा जो भी चैनल है उसको हम बोलेंगे इट्स अ Gaussian चैनल. दैट मीन्स जो इसमें नॉइज एग्जिस्ट करेगी दैट विल hold the properties of a white Gaussian channel or white Gaussian noise. Alright. अब इसका हम थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं. Let the received signal be a binary waveform and let us again assume that हमारा ये polar enargent signal जो है
It is used for representing binary ones and zero. So अगर मैं binary 1 की बात करता हूँ, then we will have x1t equal to some amplitude plus a for tb, जो भी हमारा bit period है. And if I talk about binary 0, then we are going to have x2t, that would be equal to minus a for 1 bit period t. So this we already know, we have studied this concept many times, right? So अब जो हमारा input signal है, the input signal that we have, it will either be x1t or x2t, of course, depending on whether the input binary sequence was 0 or 1. 1 के लिए it will be x1t and 0 के लिए it will be x2t. So it can take the value of either x1t or x2t depending on the polarity of the signal. So you can see here हमारे पास एक same receiver का block diagram है. So what we will be doing, we will be sending or passing this signal through an optimum filter which will sample this signal every t seconds. Every t second sample क्यों इसलिए करेगा क्योंकि हमारे पास जो input sequence है, जो हमारा main message signal है, that is having a time period of t या tb, जो भी हम लेते हैं, represent करते हैं. सो सैम्पल हमें एवरी टी या टीबी सेकेंड्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा इतने बिट्स हमारे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास सिग्नल आया है. सपोज 6 बिट्स है, सो ऑफ कोर्स जो ड्यूरेशन आएगी दैट विल बी 6 इंटू टी और 6 टीबी. सो सैम्पलिंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू सेपरेट दोज बिट्स. इसके बिना आपके पास एक कंटिन्यूस सिग्नल टाइप रहेगा एंड यू विल नॉट नो कि हमारे पास कितने बिट्स एक्चुअली आए, राइट? तो इस ऑप्टिमम फिल्टर की हमें एनालिसिस करनी है कि ये जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है इसके थ्रू, हाउ इज दिस आउटपुट गोइंग टू बी द करेक्ट आउटपुट. कैसे ये एक्चुअली डिसाइड करे कि ये आउटपुट हमारा 0 के कॉरस्पॉन्डिंग था या 1 के कॉरस्पॉन्डिंग था, विद द प्रेजेंस ऑफ नॉइज. अगर कोई नॉइज नहीं होती तब तो कोई इशू था ही नहीं, बट सिंस वी हैव नॉइज वी हैव टू एनालाइज दिस, राइट? सो ऑप्टिमम फिल्टर का यही यहाँ पर काम है कि एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड डिटेक्शन एल्गोरिथम एम्प्लॉय करें, जिससे हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी टू ऑब्टेन करेक्ट आउटपुट. सो अगेन इनपुट भी अगर हम देखें, सो इट इज गोइंग टू बी xt प्लस nt, वेयर xt कैन बी ईदर x1t और x2t डिपेंडिंग ऑन द पोलैरिटी. And after being passed through the filter and after getting the sample, हमने जो आउटपुट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है दैट इज x01t प्लस n0t एंड x02t प्लस n0t. सो ऑब्वियसली हमारे पास दो आउटपुट्स पॉसिबल है, एक कॉरस्पॉन्डिंग टू 0, एक कॉरस्पॉन्डिंग टू 1. जो हमारे पास 0 वाला होगा वो डिफरेंट होगा, 1 वाला होगा वो डिफरेंट होगा, एंड both these outputs are going to have some sort of noise in them, right? Noise हमारी remove नहीं हुई है, noise present है. So these two are going to be our outputs as we have seen from the diagram. So अगर हमारे पास noise नहीं होती, if there was no noise, तो ये जो मेरा n0t वाला term होता, that would have been removed. This would not have been there, या ये बहुत कम इसकी वैल्यू होती, then this would approximately be 0, right? So अगर मेरे पास yt x01t आता तो मैं डायरेक्टली बता सकता था कि हाँ जो मेरा इनपुट रिसीवर में आया है that is x1t corresponding to 1, and if yt was x02t then I would have been able to say easily that xt is equal to x2. ये आपके दो सिग्नल्स हैं लगभग जो आफ्टर फिल्टरिंग एंड सैम्पलिंग आए. तो अगर नॉइज नहीं होती है, नॉइज बहुत कम होती, देन दिस वुड कॉरस्पॉन्ड टू x1t which is for logic 1 and this would correspond to x2t which is for logic 0. It would have been simple, but because of the presence of noise we cannot directly use this, because अब हमारे पास एक n0t टर्म भी है या nt टर्म भी है. So what are we going to employ? What type of algorithm are we going to use?
अगर नॉइज प्रेजेंट है, दैट इज नॉइज का कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, देन x1t इज सिलेक्टेड if yt is close to x01, right? So it is quite normal and obvious. अगर हमारा जो yt है, जो हमारा आउटपुट है, you can see here, this is the output, right? And output हमारी दो वैल्यूज ले सकता है, या तो ये या ये. So if yt is close to x01, then we are going to select x1t, meaning कि ये लॉजिक 1 से आया है. And if yt is close to x02, then we are going to select x2t, meaning कि हमारा ये जो आउटपुट आया है that is due to लॉजिक 0. ठीक है, तो हम इसमें एक डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करते हैं. We create a decision boundary, basically it is called the threshold, कि हम ये थ्रेशोल्ड क्रिएट करते हैं कि अगर इससे ज़्यादा हो तो हमें ये डिसीजन लेना है, इससे कम हो तो हमें ये डिसीजन लेना है. और हमें दो ही डिसीजंस लेने हैं, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग हियर बाइनरी लेवल्स ओनली. तो हमारे पास 0 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंगली आउटपुट आएगा. सो वी टेक अ डिसीजन बाउंड्री इन द मिडल ऑफ x01t एंड x02t. ये जो हमारे दो आउटपुट सिग्नल्स हैं. तो हम डिसीजन बाउंड्रिंग या थ्रेशोल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट यूजिंग दिस. तो हम इसका एक मिडल पॉइंट ले लेते हैं, x01t प्लस x02t डिवाइडेड बाय 2. तो दिस इज आवर थ्रेशोल्ड बाउंड्री एंड वी विल डिसाइड कि हमारा जीरो जो भी आउटपुट आ रहा है, whether it is greater than this threshold or lesser than this threshold. According to that, we will be assigning our bits 1 and 0 at the output. Alright, so इसको हम optimum threshold detection level कहते हैं, जिससे हमारे पास वर्ड आता है optimum filter या optimum receiver. राइट, सो बेसिकली हमारे पास एक रिसीवर ही है. इट हैज टू परफॉर्म द फिल्टरिंग ऑप्शन एंड इट हैज टू सैम्पल. सैम्पलर अलग से भी लग सकता है, बट दैट इज द पार्ट ऑफ द रिसीवर. सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? थ्रेशोल्ड क्रिएट कर. सो जब हम ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू टेक दिस काइंड ऑफ थ्रेशोल्ड which is actually the mean of the output signals. So हमारे पास x01t corresponding to logic 1 and x02t corresponding to logic 0 आता है.